Good morning, students. In the previous video, we have studied about the various divisions of the industries. Lastly, we have studied about private sector, public sector, joint sector and cooperative sector. Students, today we are going to start with factors influencing location of an industry. सो स्टूडेंट्स, अब आप अपने दिमाग में सोचो कि अगर आपको कहीं पे अपनी इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो आप कौन कौन सी चीज़ें दिमाग में रखोगे, आपको क्या चाहिए होगा. तो अभी तो हम डायरेक्ट कन्वर्सेशन कर नहीं सकते, सो दैट आई कांट हियर योर आंसर्स. सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक. ईच इंडस्ट्री हैज़ डिफरेंट नीड्स related to its raw material, power, transportation, capital, manufacturing process, skilled personnel, including distance to the trading center. So students, each industry, अब देखो सभी इंडस्ट्रीज़ की नीड क्या होती हैं, डिफरेंट नीड्स होती हैं. डिफरेंट नीड्स मीन्स कि रॉ मटेरियल, पावर भी चाहिए उनको, ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए, कैपिटल भी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए मशीनरी भी चाहिए, स्किल्ड लेबर भी चाहिए, सो मेनी अदर थिंग्स आर रिक्वायर्ड. तो जहाँ ये सारी चीज़ें उनको मिलेंगी, देयर दे आर गोइंग टू सेट अप देयर इंडस्ट्रीज. Hence, the location of an industry depends on those factors which have a bearing of its efficient running and profitability both. Means ऐसे फैक्टर्स, ऐसी जगह ही इंडस्ट्री, ऐसी लोकेशन पे ही सेटअप होती है जहाँ पे एफिशिएंटली वो चल भी सके एंड प्रॉफिट विल ऑल्सो बी देयर. Usually an industry is located at a place where it gets easy resources, skilled manpower and lower investment cost and therefore generates maximum profitability. So students, usually an industry is located at a place where resources are very easily available. Those resources which are required for running an industry, they are easily available, and manpower is skilled and investment is low cost. पैसा कम लगाना पड़े. Therefore we can have maximum profit from that. Hence, a lot of planning is involved before establishing an industrial unit. So students, before setting up any industry at some place, we are supposed to have a lot of planning in that. The factors affecting location of an industry are classified into two groups: geographical factors and non-geographical factors. So students, various factors are there जिनको हमें ध्यान में रखना पड़ता है बिफोर starting up or setting up any industry at a certain place. These factors are geographical factors and non-geographical factors also. So geographical factors, these include land, climate, availability of raw materials, means of power in order to reach the market, and also the sources where raw materials are available. So geographical factors कौन से हैं? लैंड, क्लाइमेट और अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, जहाँ रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है, एंड मीन्स ऑफ पावर. पावर मीन्स एनर्जी सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, कि रन कैसे करेगी वो इंडस्ट्री, और इन ऑर्डर टू अब मार्केट में पहुँच भी जाने चाहिए वो प्रोडक्ट्स ईजीली. देन स्टूडेंट्स, वी हैव नॉन जियोग्राफिकल फैक्टर्स. अब ये वाला क्वेश्चन आपके पास यही फैक्टर्स वाला क्वेश्चन, इट कम्स फॉर 5 मार्क्स. 2.5 की डिवीजन हो जाती है इसमें जोग्राफिकल नॉन जोग्राफिकल में, अपने आप देख सकते हो इसको. दीज इंक्लूड गवर्नमेंट पॉलिसीज, कैपिटल मैनेजमेंट, बैंकिंग, लेबर एंड डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस, एंड अबव ऑल पर्सनल प्रेफरेंसेस ऑफ द ओनर्स ऑफ द इंडस्ट्री. तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या क्या है? गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ठीक है. नॉन जोग्राफिकल फैक्टर्स में गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, क्या वो फेवरेबल हैं उनके लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए या नहीं. कैपिटल मैनेजमेंट, सारी की सारी चीज़ें देख के ही वो करते हैं. अब यहाँ पे देख लो आप, ये सब कुछ दिया हुआ है, ये सारे फैक्टर्स. Industries tend to be located at places where favorable factors overweigh to unfavorable factors. Means ऐसी जगह होती हैं कि जहाँ favorable factors ज़्यादा हों, unfavorable क्या हो, थोड़े कम हो. We have learned that an industry needs sound infrastructure, well developed means of transport, strong financial banking, wider market and favorable government policies. तो ये तो हमने सारा पढ़ लिया.
इंडस्ट्रीज़ को क्या चाहिए? साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, वेल डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब आप देखो कि ये जो हमारे कालाम में इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे कितनी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है, कितने बड़े बड़े व्हीकल्स, ट्रक्स वहाँ आते हैं। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैंकिंग फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए वहाँ पे, फाइनेंसेस स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, मार्केट भी बड़ा होगा और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी फेवरेबल होंगी। It has also been observed that in order to take advantage of these favorable factors, other industries also get attracted to that region, making it a cluster of industrial units which lays down a formation of an industrial region. मीन्स सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, उनकी टेंडेंसी है कि फिर वो एक ही जगह सेटअप होती हैं। आप देखो जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहाँ सिर्फ एक अकेली फैक्ट्री तो नहीं होती, कितने सारी फैक्ट्रीज होती हैं इकट्ठी, ठीक है। तो जैसे हमारे पास भी है, हमारे नियर बाय कालाम त्रिलोकपुर रोड पे आप देख लो कितना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। द एग्जाम्पल्स ऑफ सच प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल रीजन्स इन द वर्ल्ड आर ईस्टर्न रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, सिलिकॉन वैली ऑफ नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड ईस्ट सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न एशिया, सदर्न एंड साउथ ईस्टर्न एशिया, गल्फ रीजन ऑफ वेस्टर्न एशिया, वेस्टर्न एंड सदर्न अफ्रीका, ईस्टर्न रीजन ऑफ साउथ अमेरिका। आप देख लो इतने सारे ये वर्ल्ड के रीजन्स हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरियाज़, इंडस्ट्रियल रीजन जिसको हम बोलते हैं। और इंडिया में भी है, और अनइवन, ऐसा नहीं है कि सब एक ही जगह है। यहाँ देख लो आप, मैप में आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ देख लो। सो दैट इज़ मुंबई पुणे रीजन, हुगली रीजन, बेंगलुरु तमिलनाडु रीजन, गुजरात वडोदरा सूरत रीजन, छोटा नागपुर रीजन, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन, विशाखापट्टनम गुंटूर रीजन, कोलम एंड थिरुवनंतपुरम रीजन। सो दीज आर द रीजन्स ऑफ इंडिया। इन रीजन्स में इंडस्ट्रियल एरियाज सेटअप है हमारी कंट्री के, जो मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अप टू हियर ओनली वी विल स्टडी टुडे, अदर थिंग्स वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।